Dear students, today we are going to discuss about the tenses. In previous lecture, we discussed that was forming of actions and tenses. Before that, we discussed that there are main two types of sentences if we want to translate something into English, especially from, of course, we are discussing about Urdu. So there are two types of sentences. One was that informative sentences. These were the sentences in which just simple information is conveyed without any presence of any action in that sentence. And after that, we discuss there are other sentences that contain an action in them, and those action sentences, of course, lead us towards the forming of tenses. And that's very important. If we have some structure of sentences, if we know about tenses, it is quite easy for us to translate something into English. Of course, whenever some students thinks about something, thinks about some, we should say that sentences, definitely he would think about in his language, in his mother tongue, or he might think about something in Urdu. But after that, in the next topic, in the next we should say that process, in the next step, he would translate them into English. So tenses are the very basic need for our discussion. We must go through these tenses, and you have also, we should say, went through this, uh, you have gone through these tenses in your previous classes too, but now these are just a type of revision. So we are going to start the very first thing, that is the past tenses. When we divide these tenses into three parts, the very first is the part that is spent, that is the part of our past. So that is called past, यानी माजी, जो कि गुजर चुका है, उस टाइम से रिलेटेड होता है. उसके बाद जो प्रेजेंट टाइम है, जो अब हम इस टाइम गुजार रहे हैं, दैट इज़ द प्रेजेंट टाइम. और फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट होता है जो अभी आना है हमारा, यानी फ्यूचर. तो आज हम जो स्टार्ट ले रहे हैं वो हम कर रहे हैं सिंपल पास्ट से, यानी पास्ट को फिर फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सिंपल पास्ट, या उसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं. फिर दूसरा इसमें इसी तरह से पास्ट परफेक्ट होगा, फिर पास्ट कंटिन्यूस होगा, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो हर टेंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो इस टेंस से, यानी सिंपल पास्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हम अपने माइंड में रखेंगे कि इस तरह से कोई भी टेंस है वो हम बनाएंगे, और उसको ट्रांसलेट करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा. तो सबसे पहली चीज़, द वेरी फर्स्ट थिंग when we are talking about any tense, that is how to identify or how to think about that sentence. If some sentence comes to our mind, and how will we come to know if that belongs to some specific tense. We have here screen share, and we can look at that. Used for happening of some action in past. It is quite simple. यानी हम जब किसी भी काम के बारे में बताना चाह रहे हैं जो कि पास्ट में हुआ और पास्ट में साथ ही ख़त्म भी हो गया, ऑफ कोर्स, तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं. और इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि वी वांट टू show a distinction, we want to make a difference between present and past. If something, some action happened in past or present, just अगर ये purpose हो, if we want to show that only this purpose, तो फिर हम उसके लिए simple past tense use करते हैं. Some action done in past and not in present. Basic इसकी clue जो है वो इसको हम माइंड में रखेंगे. अब जब हम sentences की बात करते हैं तो इट्स क्वाइट सिंपल. अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हम बात करते हैं तो उसमें, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो कि जिनको हम कहते हैं मुस्बत फ़िक्र, यानी जिसमें कोई काम होने के बारे में बताया जाता है, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद वो आपके सेकंड फॉर्म. सब्जेक्ट क्या होता है? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सब्जेक्ट इज़ द पर्सन अबाउट whom we are talking about. In special circumstances of these tenses, if we are talking about, it means that subject is the doer of an action here. If because we are talking about actions and tenses in all condition right now, हम इन तमाम में tenses की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें of course actions and tenses ही होंगे. तो subject mean काम करने वाला, और उसके बाद हम verb के second form लगाएंगे. अगर हम किसी से सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन आफ्टर दैट वी पुट डिड नॉट नेगेटिव के लिए, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, राइट. फिर हम उसको सेकंड फॉर्म में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि डिड इटसेल्फ एक सेकंड फॉर्म है डू की,
जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पुट करेंगे अगर हम किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं। डिड, अब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिड को स्टार्ट में लेके आते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर आगे क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। और अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से नहीं स्टार्ट होने, मीन ऐसे क्वेश्चन जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हु, लाइक दिस, तो उसमें हम फिर क्या करते हैं, डब्ल्यू एच पहले लगाते हैं, फिर डिड लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। यानी हमने ये देखा कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो तरह के होंगे हमारे पास। एक वो क्वेश्चंस, अगर हम उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिंपल क्वेश्चन जो क्या से स्टार्ट होते हैं, यानी उसने खाना खाया, सपोज अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं उसने खाना खाया, तो ये आ जाएगा ही एट, और आगे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट इन तमाम सेंटेंसेस ज़रूरी नहीं होता, इन कुछ सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो मेंशन किया हुआ है ऑफ कोर्स मैंने सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाई है। जैसे ही रैन, यानी हम अगर इसको डिस्कस करें तो इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सिर्फ जो है इसमें सब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ही रैन। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो ये बन जाएगा ही डिड नॉट रन, राइट। और फिर अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं यानी सिंपल वाला, क्या वो दौड़ा, डिड ही रन, राइट। और उसके बाद अगर हम डब्ल्यू एच वाला, वो कब दौड़ा, वो कैसे दौड़ा, या इस तरह के सेंटेंसेस, तो फिर आ जाएगा व्हेन डिड ही रन, राइट। और अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट है तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट भी पुट करेंगे, राइट। सपोज ही रोट अ लेटर, ठीक है, सिंपल, ही रोट अ लेटर, लेटर आगे ऑब्जेक्ट है जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तमाम सेंटेंसेस में नहीं चाहिए होता, मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, तो कुछ सेंटेंसेस में हमें ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है। सपोज इसी तरह से इसको अगर हम बनाएंगे नेगेटिव, तो ये बन जाएगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर, लेटर जो है वो आगे अ लेटर आगे ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, जो कि इसमें हम मेंशन नहीं किया क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हम उसको देख रहे हैं। और उसके बाद इंट्रोगेटिव है तो डिड ही राइट अ लेटर, राइट। फिर इसी तरह से व्हेन डिड ही राइट अ लेटर। तो ये हमारे पास सिंपल पास्ट का एक स्ट्रक्चर आ गया। जब भी हमारे पास कोई सेंटेंस आएगा ऑफ कोर्स हम ये देखेंगे कि ये पैटर्न हमारे पास माइंड में मौजूद है, तो हम उसको इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसके पैसिव फॉर्म जो है वो भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। अब पैसिव फॉर्म का बेसिक पर्पस क्या होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया कि पैसिव फॉर्म्स वो होते हैं जिसका सब्जेक्ट जो है वो अननोन होता है। एक्चुअल या इन रियल सेंस अगर हम बात करें तो पैसिव वर्ब वो होता है जिसका सब्जेक्ट अननोन है। लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये भी है कि हम उस सब्जेक्ट को एंड पर लेके चले जाते हैं, यानी बाय लगा के उसके साथ सब्जेक्ट लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेके आते हैं। ये प्रैक्टिस भी हमारे यहाँ है, बट इन रियल फॉर्म अगर हम उसका पर्पस देखें तो पैसिव का बेसिक पर्पस ही यही होता है कि हम उसके ऑब्जेक्ट को या वर्ब को एम्फसाइज कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, वर्ब को सिर्फ फोकस कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट यानी उसके काम के करने वाला जो होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता या बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होता सेंटेंस में, या अगर होता है तो उसको एंड पे लेके जाते हैं। तो हम जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि उसका सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। पैसिव बेसिकली उसका एक्चुअल या रियल पर्पस जो है वो यही होता है कि उसका सब्जेक्ट अननोन है या सेंटेंस में प्रेजेंट ही नहीं है। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, यानी पैसिव इज बेसिकली अ सेंटेंस इन विच द डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट इज अननोन आर नॉट प्रेजेंट, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पैसिव की बात करें यानी इस सिंपल पास्ट के पैसिव बनाना चाहें तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट होगा जो कि एक तरह से सब्जेक्ट के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा होता है, राइट। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट ही है उस सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो एक्चुअली होता ऑब्जेक्ट है इन रियल। वाज वर्ब लगाएंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, यानी ऊपर वाले एक्टिव में हमने देखा कि वहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं थी हमें, हमने डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट। ऑब्जेक्ट वाज वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से वाज वर्ब स्टार्ट में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे, राइट। अब इसका कुछ उर्दू ट्रांसलेशन है, सेंटेंसेस हैं सिंपल से, हम उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है वो घर का रास्ता भूल गए, राइट। तो वो से मुराद, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है तो जब हम इसको बनाएंगे तो पैटर्न हम अपने माइंड में रखेंगे कि किस तरह का पैटर्न था जिसको हमने ट्रांसलेट करना है इसमें सिंपल पास्ट में। तो हम यहाँ पे बनाएंगे दे, राइट, दे इज़ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी।
एक चीज़ और जो आपने जहन में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब उर्दू से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, अगर सेंटेंस वो लॉन्ग है थोड़ा सा, या उसमें आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि सबसे पहले उर्दू में जो पार्ट होगा ऑफ कोर्स वो सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश में भी वही सब्जेक्ट हम पुट करेंगे। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, यानी इंग्लिश में हमने जो दूसरे नंबर पर जो पार्ट लगाना है वो हमारे पास होता है वर्ब। ठीक है, जैसे इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, लेकिन इंग्लिश में ये जो पार्ट होगा सेकंड नंबर पर होगा। बट इन उर्दू जब हम बात करते हैं तो उर्दू में वो पार्ट सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में होगा। चाहे जितना भी लॉन्ग सेंटेंस हो, आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब आप किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं उर्दू से इंग्लिश में, तो हमेशा याद रखें फर्स्ट पार्ट जो है वो सब्जेक्ट होगा, जो कि उर्दू में भी स्टार्ट में होता है और इंग्लिश में भी बिगनिंग में होगा। जब हम उसको नेक्स्ट नंबर वाला देखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट नंबर पे इंग्लिश में हमेशा वर्ब होता है, लेकिन उर्दू में जो वर्ब है वो आम तौर पर इन जनरली सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में मौजूद होता है। एग्जैक्टली इसी सेंटेंस को हम देखते हैं जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑफकोर्स व्हेन वी लुक एट इट, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले दे है, जो कि सब्जेक्ट है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी पहले मौजूद है। उसके बाद फिर हमने लगाना है वर्ब। इंग्लिश में दूसरे नंबर पर हमेशा वर्ब आता है, लेकिन उर्दू में जब हम देखते हैं वर्ब को, तो वर्ब आम तौर पर इन जनरल सबसे आखिर में मौजूद होता है। ठीक है, तो हमने लगाना है दे, और फिर हमने लगाना है भूल गए। भूल गए इसमें वर्ब है, राइट, दे फॉर गॉट। ठीक है, दे फॉर गॉट। और अब आगे, यानी यहाँ पे हमारा सेंटेंस मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट भी हमें चाहिए, तो फिर हम इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है घर का रास्ता। दे फॉर गॉट देयर वे टू होम, राइट। तो ये इसका जो है वो इंग्लिश का सेंटेंस बन जाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वन है इंट्रोगेटिव है, क्या उन्होंने वक्त ज़ाया किया। अब ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में जैसा कि हमने ऊपर देखा कि सबसे पहले हमने डिड लगाना है, डिड के बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो एंड पे। क्या उन्होंने वक्त ज़ाया किया, डिड दे वेस्ट देयर टाइम। तो अब यहाँ पे देखें, उर्दू में यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने अपना वक्त ज़ाया किया, लेकिन इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका यही मतलब है कि उन्होंने अपना वक्त ज़ाया किया या नहीं किया। डिड दे वेस्ट देयर टाइम, तो उसमें देयर यानी उस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हमने साथ लगाना होता है। इसी तरह से एक लास्ट में सेंटेंस दिया हुआ है जो कि पैसिव फॉर्म में है, और पैसिव फॉर्म में है अगर हम तो उसको देखें तो आ, आ, तो उसको हम देखते हैं तो मकान की सफेदी नहीं की गई। ठीक है, तो मकान की सफेदी नहीं की गई। अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये पैसिव है, क्योंकि इसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है। जब किसी भी सेंटेंस के अंदर काम करने वाला नहीं होगा, डोर ऑफ एन एक्शन नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स वो क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। तो अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो मकान है, उसको हम स्टार्ट में लेके आएंगे, और हमारे पास ऊपर पैटर्न भी हमारे माइंड में मौजूद है। यहाँ पर मेंशन है ऑब्जेक्ट मकान है, यानी द हाउस, और फिर उसके बाद वाज या वर लगाएंगे, हाउस वाज। अब नेगेटिव है तो नॉट साथ लगाएंगे, वाज नॉट, और फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म वाइट वॉश्ड। ठीक है, तो सफेदी के लिए वाइट वॉश यूज़ होता है। अब इससे पहले जो एक सेंटेंस हमारे पास मौजूद है लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि में पाकिस्तान पर हमला किया गया। एक्चुअली ये 1965 स्टार्ट में लगाना था, तो वो नंबर की वजह से ये एंड पे चला गया। तो हम देख सकते हैं, यानी ये सेंटेंस बनेगा 1965 में पाकिस्तान पर हमला किया गया। तो ये भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, सॉरी पैसिव फॉर्म है, यानी ऑब्जेक्ट को हमने स्टार्ट में लेके आना है, क्योंकि इसमें भी काम करने वाला मौजूद नहीं है। जब किसी भी सेंटेंस के अंदर काम करने वाला मौजूद नहीं होगा, डोर ऑफ एन एक्शन नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स वो हमारे पास कौन सा पार्ट होगा, यानी वो हमारे पास बन जाएगा पैसिव फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म के लिए हमारे पास पैटर्न मौजूद है। अब इसमें हम देखते हैं जो मेन पार्ट है, पाकिस्तान पर हमला किया गया, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान वाज लगाएंगे, अटैक्ड हमला किया गया, यानी वर्ब है इसका, और कब हमला किया गया एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो होता है वो आमतौर पर सेंटेंस के एंड में, या बाज़ औक़ात उसकी पोजीशन चेंज भी होती है, बट नॉर्मली इन जनरली हम अगर बात करें तो वो लास्ट में आ जाता है। यानी हम इसको अगर बनाना चाहें तो हम इस तरह से कहेंगे पाकिस्तान वाज अटैक इन 1965। तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेजेस की जो प्लेस होती है जनरली सेंटेंस के एंड पे लगाते हैं, बट
उसके बावजूद हम उसको स्टार्टिंग में भी पुट कर सकते हैं, यानी इन 1965 हम स्टार्ट में लिखकर फिर भी लिख सकते हैं इन 1965 पाकिस्तान वाज अटैक्ड। तो ये हमारे पास एक बेसिक पैटर्न है, यानी एडवर्बियल अगर हमारे पास आते हैं तो उनकी जो जनरली प्लेस जो होती है वो सेंटेंस के एंड पर होती है, बट सम टाइम हम उनको सेंटेंस के स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, या अगर सिंगल वर्ड्स हैं एडवर्ब्स तो उनकी पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज होती जाती है। सम टाइम वो मेन वर्ब से पहले आते हैं, सम टाइम एंड पे सेंटेंस के आते हैं, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन एडवर्बियल भी हम पुट कर सकते हैं। इन जनरल अगर हम अपनी माइंड में कोई क्लासिफिकेशन रखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेंटेंस के एंड पर आना चाहिए उनको। एडवर्बियल्स को यानी कोई काम यानी वर्ब से रिलेटेड वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है कि कोई काम कब किया गया, कैसे किया गया, उससे रिलेटेड वो हम सेंटेंस के एंड पे लगाते हैं। राइट, आई थिंक दिस पार्ट ऑफ आवर्स इज कंप्लीट। तो अब हम इस इसको यहाँ पे आई थिंक कि कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट फिर हम उसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस अबाउट दिस टेंस एंड यू विल आंसर मी अबाउट दैट। ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर का सेशन हम करते हैं। राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव learned it very thoroughly